is some homework for you. As you are following my channel and reading the chapters of Gita, so I thought of asking some questions from you so that I will be able to know whosoever are reading my Gita and who are following and who are interested, really interested in to read Gita from my voice, from my eyes, from my views. So this is the question. Dharam Kshetra or Kurukshetra? Choice is ours. How can we live a perfect life while keeping balance with both of them? So this question is till verse 1. Chapter 1 verse 1, and the very first episode of Bhagavad Gita was of course introduction. Second was of analogy of the characters of Mahabharata, and third was the chapter 1 verse 1. So if you haven't read it carefully, these 3 chapters, read it thoroughly and give me the answer in the comment box. और जिसके आंसर सबसे बेटर होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उसके कमेंट को मैं पिन करूंगी YouTube पे ताकि वो सबसे टॉप पर आए। और आपको मेरी कम्युनिटी में, फेसबुक कम्युनिटी है, उस पर रिकॉग्निशन मिलेगी। आपकी फोटोग्राफ के साथ आपका आंसर प्रिंट किया जाएगा और आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी उससे। तो प्लीज 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 अपने आंसर्स कमेंट जरूर कीजिए मेरे YouTube कमेंट में, और सेम वे मैं अपनी कम्युनिटी में भी ये पोस्ट डालूंगी, तो वहां पर जाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी को फॉलो करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जाके आप मेरा फेसबुक ग्रुप फॉलो कर सकते हैं। There are personalities like yourself, Bhishma, Karna, Kripacharya, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somdatta called Bhurishwaha, who are always victorious in battle. मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्णा और सोमदत्त के पुत्र विश्वाहा हैं, जो कि सदा युद्ध में विजयी रहे हैं। Dronacharya mentioned the exceptional heroes in the battle, all of whom are ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana. Ashwatthama is the son of Dronacharya, and Somdatti or Bhurishwaha is the son of the king of Vahikas. Karan is the half-brother of Arjuna, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya married the twin sister of Dronacharya. दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्वाहा बालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी।
how Duryodhana in his mental hysteria got slightly upset at the subjective onslaught of his own brutal motives and past crimes. As a true dictator that he was, he regained his balance in no time. The moment he had split out in his insulting arrogance, the term twice born in addressing his teacher, he realized that he had overstepped the bounds of discretion. Perhaps the cold silence of Ravat Acharya spoke amply to Duryodhan. हालांकि दुर्योधन अपनी मानसिक अस्थिरता से थोड़ा परेशान था, इसलिए अपने क्रूर इरादों और पिछले जुर्म के कारण आत्म हमला किए जा रहा था, और जैसे ही उसने यह सब अज्ञानतापूर्वक अपमान को अपने अंदर से निकाला, अपने गुरु को द्विजन्मा कहकर, कैसे निकाला था? अपने गुरु को द्विजन्मा कहकर, वैसे ही उसी पल, उसी क्षण वह अपनी स्थिरता में वापस आ गया और उसने यह महसूस किया कि उसने विवेक की हद पार कर दी है और फिर भी उसके आचार्य, जो उसके लिए आदरणीय गुरु थे, उन्होंने शांत रहकर ठंडी खामोशी से उसकी बात सुनते रहे और दुर्योधन को पर्याप्त मात्रा में बात कहते रहे। तो आई थिंक यह एक अच्छे गुरु की पहचान होती है कि उसका शिष्य जो भी गलत सलत बोलता रहता है अज्ञानता पूर्वक, तो गुरु कभी भी उससे बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकता। The tyrant king immediately switches off the topic and starts enumerating the list of heroes in his own army. In the list, to coat the flavor of Drona and to honor his back to a more happy composer, Duryodhana mentions Dronacharya himself at the top of the list, even before the name of the Bhishma. तो तानाशाही राजा ने एकदम से अपना जो भी उसका उस समय बात चल रही थी उससे बिल्कुल पलटकर अपना उस बात से हटकर एकदम ही दूसरी बात पे वो उसने दूसरी बात शुरू कर दी और अपनी सेना में जितने वीर योद्धा थे उनके एक एक करके नाम लेने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले लिस्ट में उसने थोड़ा सा व्यंग को शामिल करने के लिए उसने द्रोणा को थोड़ा और द्रोणाचार्य को थोड़ा और परेशान करने के लिए, मतलब उनको और उकसाने के लिए, तो उसने एक अपने मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, खुश बनाने के लिए उस दुर्योधन ने सबसे पहले द्रोणाचार्य को अपनी लिस्ट में रखा, मतलब सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया भीष्म से भी पहले, क्योंकि भीष्म ये बात, क्योंकि दुर्योधन ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर द्रोणाचार्य का नाम अगर वो पहले ले भी लेगा तो भी भीष्म बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु थे और क्षत्रिय होने के नाते भीष्म जो हैं द्रोणाचार्य का सम्मान करते थे, उनको रिगार्ड देते थे। Again, it is interesting to note here that he qualifies Kripa, the brother-in-law of Drona, with
a rather high-sounding qualification as victorious in war. Not satisfied even with this, the assiduous diplomat Duryodhana names Ashwatthama, who is Drona's own son. Out of these 7 names, mentioned 3 are Drona, his brother-in-law, and his son, as though Drona and his family alone had the monopoly of heroism and chivalry in vast army of the Kauravas. यहाँ पर एक दिलचस्प टिप्पणी ये है कि दुर्योधन ने सबसे पहले कृपाचार्य का नाम लिया, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के जीजा थे, क्योंकि द्रोणाचार्य की पत्नी और कृपाचार्य की जो पत्नी थी वो दोनों जुड़वा बहनें थी, और उन्होंने कृपाचार्य को ऊंची आवाज में द विक्टोरियस इन वॉर, मतलब युद्ध में सबसे बलशाली विजयी, इस टिप्पणी से उन्हें संबोधित किया। और इससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो परिश्रमी राजनीतिक ने, जो दुर्योधन थे, फिर अश्वत्थामा का नाम लिया, जो कि द्रोणाचार्य के बेटे थे। और इन 7 नामों में से उन्होंने 3 नाम ऐसे थे जो जिसमें से एक उनका बेटा था, एक उनका जीजा था, और फिर उसके बाद द्रोणाचार्य का नाम लिया। और जबकि सबको ये पता है कि द्रोणाचार्य जो और उनका जो परिवार था वो कौरवों की सेना में सबसे अधिक बलशाली था, मतलब उनकी जो वीर गाथाएं थी उसमें और शिष्टाचार में, मतलब एलिगेंस में वो सबसे अधिक श्रेष्ठ माने जाते थे, उनका उस पे एकाधिकार था। This very exaggeration clearly indicates that Duryodhana did not mean anything sincerely, and his only intention was to bring back the great Acharya to a pleasanter mental mood. तो इन सब ऊपर दिए गए उदाहरणों से ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि दुर्योधन ने कुछ भी यहाँ ईमानदारी से निष्ठापूर्वक नहीं कहा है। उसका इरादा बस अपने गुरु का, तो गुरु द्रोणाचार्य का जो मानसिक मनोदशा थी उनको और सुखद करना चाहता था।